इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्कर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में, एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग ऑर्डिनल एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और हिक्सियन एनालिसिस. Consumer's equilibrium refers to a situation in which a consumer derives maximum satisfaction with no intention to change it and subject to given prices and his income. Consumer's equilibrium, state of rest. Equilibrium is a state of rest कि बस और कुछ नहीं चाहिए, यहीं पे मेरी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है. I would not like to change the combination. Given prices, fixed prices. Consumers equilibrium. तो अगर 6 मार्कर आएगा तो पहला पॉइंट आपका मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होगा. पहला मीनिंग, दूसरा कंडीशंस. स्टेप्स होंगे ना, पहला मीनिंग, दूसरा कंडीशंस. तो फिर उसके बाद आपके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंडीशंस. ठीक है ना. अजम्पशंस लिखना एडवाइजेबल रहता है, ठीक है ना. बेटर रहता है कि मीनिंग कंडीशन के बाद अजम्पशंस भी दे दो, कंडीशन से पहले भी अजम्पशन दे सकते हो. इट एड्स क्वालिटी टू द आंसर. ठीक है. बट मैं कह रहा हूँ कि वो 6 मार्कर के लिए मेहनत करनी पड़ती है. तो मीनिंग आ गया. फिर उसके बाद आती है कंडीशन, कि कंडीशंस क्या है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की. कब होती है सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम? द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज अचीव्ड बाय स्टडीइंग इंडिफरेंस मैप, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स and budget line together. This is not a part of your answer, this is a part of understanding the answer. ठीक है ना. आपने फर्स्ट डेफिनेशन दे दी, उसके बाद कंडीशंस आनी है, तो बता रहे हैं कि कंडीशंस अंडरस्टैंड करने के लिए we will study indifference map and budget line together. On an indifference map, higher indifference curve represents higher level of satisfaction than any lower indifference curve. So consumer always tries to remain at the highest possible indifference curve, subject to his budget constraint. कि बजट में भी ला करना चाहिए. Conditions क्या हैं? Number 1, MRS XY should be equal to the price ratio or the market rate of exchange. Price ratio is equal to the market rate of exchange. What is MRS? MRS is the slope of indifference curve. What is the price ratio or the market rate of exchange? It is the slope of budget line. Indifference curve or the consumer is said to be in equilibrium, said to be at equilibrium when the slope of indifference curve is equal to the slope of budget line. When MRS is equal to the price ratio. Price ratio और market rate of exchange एक ही बात है. तो ये नहीं कि when MRS is equal to price ratio is equal to, तीनों इक्वल होने चाहिए. बेटा प्राइस रेशियो और मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज एक ही बात है. So basically MRS should be equal to the price ratio. MRS should be equal to the market rate of exchange. वो एक ही बात है, प्राइस रेशियो और मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज. They both are the slope of budget line. So basically the slope of indifference curve should be equal to the slope of budget line. Condition 1. Condition 2, MRS continuously falls. तो कंडीशन 2 है. तो पहले मीनिंग बेटर आंसर के लिए. सेकंड assumptions of indifference curve analysis. ठीक है ना. थर्ड कंडीशंस. फिर कंडीशन के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन. तो व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग द कंडीशंस you have to explain disequilibrium also. मतलब कंडीशन है MRS should be equal to the price ratio. So what happens when they are not equal? तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. What happens if MRS is greater than the price ratio? What happens when MRS is less than the price ratio? एक्सप्लेनेशन का पार्ट है. तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग क्या होता है. MRS, units of good Y that a consumer is willing to sacrifice for an additional unit of good X. What is price ratio? Units of good Y that the consumer has to sacrifice for an additional unit of good X depending on the market price of the commodity. Depending on the market price of the
commodity, market prices पे dependent. What you are willing to sacrifice, what you have to sacrifice. तो इनिशियली एग्जाम्पल लेते हैं, अगर पेन है 50 रुपए का और पेंसिल है 5 रुपए की, तो एक पेन के लिए डिपेंडिंग ऑन द मार्केट प्राइस आपको कितनी पेंसिल सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी? क्वेश्चन, 50 रुपए का पेन, 5 रुपए की पेंसिल, 10 px अपॉन py, 50 अपॉन 5, 10 आ गया, तो 10 पेंसिल, 5 रुपए की एक पेंसिल, 50 रुपए का एक पेन। एक पेन के लिए कितनी पेंसिल सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, मतलब उसके बदले कितनी पेंसिल आ सकती हैं, ये होता है। एक पेंसिल 5 रुपए की, तो 50 रुपए क्रिएट करने के लिए कितनी पेंसिल आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी? 10, तो वो तो हर एक पेन के लिए 10 ही रहेगा, तो प्राइस रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। इनिशियली आपके पास 100 पेंसिल्स थी, एक भी पेन नहीं है। 100 पेंसिल्स थी मोक्ष आपके पास, एक भी पेन नहीं है। एक पेन के लिए कितनी पेंसिल सैक्रिफाइस करना चाहोगे? योर विलिंगनेस। आपके पास 100 पेंसिल्स हैं, एक भी पेन नहीं है, तो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए? आपके लिए पेन इंपॉर्टेंट है, तो उस एक पेन के लिए कितनी पेंसिल्स देने के लिए तैयार हो जाओगे? बड़े कंजूस हो भाई, 20 ले ले, 30 ले ले, कुछ भी ले ले, बस पेन दे दे। ये पेंसिल मैं करता हूँ, ये आके मिटा के चला जाता है, काम ही नहीं हो पा रहा है कि नहीं? प्रॉब्लम है ना, एक तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो पेन चाहिए मुझे, तो मिल जाएगा अगर आप देना चाहोगे 20 पेंसिल। योर MRS इज ग्रेटर देन द प्राइस रेशियो, योर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस पेंसिल is more than what the market requires. How is it more? Why is it more? Because आपके पास उस चीज की शॉर्टेज है। You value pen more than the pencil, or than what the market values. Yes or no? अब आपके पास एक पेन है और लेट अस अज्यूम आपने 25 दी थी, तो 75 पेंसिल्स हैं, 75 पेंसिल्स हैं अभी भी, और एक पेन है, तो एक और पेन के लिए आप कितनी पेंसिल देने के लिए तैयार हो जाओगे? अभी भी बहुत देने के लिए तैयार हो जाओगे। स्टिल MRS इज ग्रेटर देन द प्राइस रेशियो। अब लेट अस अज्यूम आपने 20 दे दी, तो अब 2 पेन है और 55 पेंसिल्स हैं, इतनी सारी पेंसिल्स हैं, उड़ रही हैं, गिर रही हैं। यस और नो? यही सिचुएशन है फिलहाल। तो एक और पेन के लिए कितनी पेंसिल्स देने के लिए तैयार हो जाओगे? 15। सिंप्लीफिकेशन के लिए आपने 15 पेंसिल दे दी, अब आपके पास 40 पेंसिल है और 3 पेन है, आपको बड़ी इजीली सामान मिलता जा रहा है, बिकॉज यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस मोर देन व्हाट द मार्केट रिक्वायर्स। अब एक और पेन के लिए कितनी पेंसिल देने के लिए तैयार हो जाओगे? अरे चैन पे आ जाना, तो भी बड़ी धीरे धीरे पहुंच रहा है, ये हुई ना बात। 10 देने के लिए तैयार हो जाओगे, तो आपको अभी भी मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट का भी वही रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू सैक्रिफाइस बेसिकली 50 रुपए देने हैं, तो आपको अभी एक और पेन मिल गया। अब ध्यान से देखना, अब आप कहां पहुंच गए हो? यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस 10 पेंसिल्स फॉर अ पेन। लेट अस अज्यूम अभी आप 30 पेंसिल्स पे हो और आपके पास 5 पेन है। फॉरगेट अबाउट द कैलकुलेशन। पॉइंट इज, नेक्स्ट पेन के लिए कितनी पेंसिल सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाओगे? लॉ ऑफ DMU वायलेट हो दिया। MRS ये क्या? MRS कंटिन्यूअसली फॉल्स, तो MRS कंटिन्यूअसली फॉल्स बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ DMU। इसका मतलब नेक्स्ट पेन आपको पहले से कम सेटिस्फैक्शन देगा या ज्यादा? कम देगा, तो योर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस पेंसिल्स फॉर दैट नेक्स्ट पेन वुड बी हायर और लोअर? तो 10 से तो कम ही होगी ना। सर मैं तो 12 के हिसाब से बोला था ना, आपने जबरदस्ती तब 10 बोलवा, मैं 12 पे दिमाग था, तो मैं अगली बार 10 ही बोलने वाला। पिछली बार 10 बोल चुके हो, तो अब लेस देन 10। मार्केट में रेट चल रहा है 50 रुपए, तो इफ यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस लेस देन व्हाट द मार्केट वांट्स यू टू सैक्रिफाइस, विल यू गेट द कमोडिटी? नो, तो आपको वापस आना पड़ेगा। तो कहां पे जाके स्टेबिलिटी आएगी सिचुएशन में? व्हेन MRS इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो। तो ज्यादा है तो भी आप कंज्यूम करते जाओगे, क्योंकि अभी आप स्टेबल नहीं हो।
कम है तो वैसे आपको सामान नहीं मिलेगा, तो भी आप स्टेबल नहीं हो। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जहां से आप मूव नहीं करना चाहोगे, वेयर द slope of indifference curve is equal to the slope of budget line, or MRS is equal to the price ratio. Price ratio is also known as the, or is always equal to the market rate of exchange. तो दोबारा अंडरस्टैंडिंग सुनेंगे बट यही रहेगी, बदल नहीं जाएगी. The consumer's equilibrium under indifference curve theory must meet the following two conditions. Condition 1, MRS XY should be equal to the ratio of prices, और PX1 एक ही बात है, ठीक है जी. Let the two goods. First condition. Okay. What happens when MRS is greater than? It is greater than the price ratio. It means that to obtain one more unit of X, हमारे example में pen, क्योंकि आपके पास पेन की शॉर्टेज है और पेंसिल बहुत ज्यादा थी, तो to obtain one more unit of X, the consumer is willing to sacrifice more units of Y as compared to what is required in the market. मार्केट की रिक्वायरमेंट तो 10 पेंसिल थी, आप 25 क्यों तैयार हो गए थे 25 देने के लिए? क्योंकि मेरे पास उस चीज की बहुत शॉर्टेज थी. आपने विलिंगनेस पूछी थी, दूंगा या नहीं दूंगा वो तो बात की बात है, बट मैं तो विलिंगनेस बता रहा हूं ना. क्लियर? योर विलिंगनेस इज मोर. इट इंड्यूसेस द कंज्यूमर टू बाय मोर ऑफ एक्स, क्योंकि आपके लिए एक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्स की शॉर्टेज है आपके पास. एज अ रिजल्ट, जैसे जैसे आप एक्स कंज्यूम करोगे, पेन और लेते जाओगे, तो योर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस पेंसिल्स फॉर पेन गिरती जाएगी, गिरती जाएगी, गिरती जाएगी. लेकिन एज लॉन्ग इट इज मोर, एज लॉन्ग एज इट इज मोर देन द प्राइस रेशियो, तब तक आप और एक्स कंज्यूम करते जाओगे, क्योंकि एक्स आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है ज्यादा. It continues to fall till it becomes equal to the ratio of prices and equilibrium is established. In other words, if MRS is greater than the price ratio, it means that the rate at which consumer is willing to sacrifice good Y to obtain one more unit of good X is more than, greater than the rate at which consumer has to sacrifice. Has to sacrifice मतलब depending on the prices, what you have to sacrifice. कितना करना पड़ेगा, कितना करना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो सैक्रिफाइस, दैट इज मोर, जो कि मार्केट की रिक्वायरमेंट है, तो आपको इजीली सामान मिल जाएगा, क्योंकि आपके लिए अभी एक्स इंपॉर्टेंट है, तो आप कंज्यूम करते जाओगे. क्लियर है? फिर डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन 2 कि व्हाट हैपेंस व्हेन एमआरएस इज लेस देन एमआर प्राइस रेशियो. योर विलिंग, क्योंकि अब आपके पास पेन बहुत हो गए, तो आप कह रहे हो कि मैं तो 8 दूंगा पेंसिल, तो क्या आपको मिलेगा सामान? मिलेगा ही नहीं, मार्केट रेट ही 10 का चल रहा है. It means that to obtain one more unit of X, the consumer is willing to sacrifice less units of Y as compared to what is required in the market. तो आपको मिलेगा ही नहीं सामान, तो क्या होगा? It induces the consumer to buy less of X. तो X अब आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कह रहा मैं नहीं दे रहा Y, मैं नहीं दे रहा Y, मैं 8 दे रहा हूँ, तो अब इसके मतलब Y की इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गई है आपके लिए, क्योंकि Y कम होता जा रहा है, X बढ़ता. थोड़ा अभी भी तो इतनी सारे है, बात इतने सारे की नहीं है. एक पेन 4-5 पेंसिल के बराबर, 10 पेंसिल के बराबर है रेट के हिसाब से, तो यस और नो? तो अब आपके पास 5 पेन हो चुके हैं और 30 पेंसिल्स हैं, और ऑलरेडी पिछले वाले के लिए आप 10 सैक्रिफाइस कर चुके हो, तो नेक्स्ट के लिए 10 से तो कम ही करोगे ना, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डीएमयू और डिमिनिशिंग एमआरएस. तो अब आप क्या करोगे? यू विल रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स एंड इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड वाई. एज अ रिजल्ट एमआरएस राइजेस. अब आप उल्टा जा रहे हो, क्योंकि आपका एमआरएस इतना गिर गया था, अब आप एक्स की कंजम्पशन कम कर रहे हो, रिवर्स ऑपरेशन. समझ आया क्या बोला? इंपॉर्टेंट पॉइंट. कब तक होगा ये? टिल इट बिकम्स इक्वल टू द प्राइस रेशियो एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड. कंडीशन 1, MRS should be equal to the price ratio. Condition 2, MRS continuously falls. ये कंडीशन क्यों? तभी तो आप इतने श्योर हो कि मैं एक और, मैंने क्या बोला कि 10 तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS. तो if MRS is greater than the price ratio, how can you be so sure कि आप और कंज्यूम करते चलो करते चलो करते चलो, और एक टाइम आएगा MRS will become equal to the price ratio because of diminishing MRS. तभी तो श्योर हो ना. तो ये अंडरस्टैंडिंग. और डायग्रामेटिकली MRS, diminishing MRS gives convex shape to the indifference curve.
डिमिनिशिंग एमआरएस गिव्स कॉन्वेक्स शेप टू द इंडिफरेंस कर्व। तो किसी चीज की कॉन्वेक्स शेप होगी तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टैंजेंट हो सकता है। इट गिव्स यूनिक इक्विलिब्रियम। बॉल की कॉन्वेक्स शेप होती है, अगर मतलब एक साइड तो कॉन्वेक्स ही है ना, तो जमीन पे एक ही पॉइंट पे टच करेगी ना। तो इंडिफरेंस कर्व एक ही पॉइंट ऐसा होगा व्हेन इट इज टैंजेंट टू द बजट लाइन। एक से ज्यादा पॉइंट नहीं हो सकते टेंजेंसी के। तो MRS continuously falls. Diminishing MRS, it gives convex shape to the indifference curve, which ensures unique equilibrium. एक ही equilibrium point आएगा। और दूसरा तो आपको बता दिया कि मतलब diminishing MRS की वजह से तभी equilibrium आप अचीव करेंगे कि because you are sure कि और कंज्यूम करेंगे तो MRS गिरेगा। The second condition of consumer's equilibrium is that MRS must be diminishing at the point of equilibrium. Indifference curve must be convex to the origin at the point of equilibrium. It must be convex to the origin. Unless MRS continuously falls, equilibrium cannot be established. Thus, both the conditions need to be fulfilled for a consumer to be in an equilibrium. Wait out. So conditions clear. So meaning, assumptions, conditions. Tangent. ध्यान से देखना, आपने बोला एक ही बार होगा, बट इस डायग्राम में तो यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है। ये है आपका डाउट। तो ये पॉइंट पे टेंजेंट थोड़ी ना इंडिफरेंस कर्व, टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जब इंडिफरेंस कर्व यहां से जा रहा है ऐसे, तो ये जो पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे दोनों की स्लोप एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है? तो ये है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इस पॉइंट पे तो ये टेंजेंट ही नहीं है। टेंजेंट होना मतलब इंटरसेक्ट करना नहीं होता। इस पॉइंट पे ये दोनों कर्व्स क्या टेंजेंट है? इस पॉइंट पे ये दोनों कर्व्स टेंजेंट है। तो कॉन्वेक्स है, इसी की वजह से सिर्फ एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां टेंजेंसी होगी। इट एंश्योर्स यूनिक इक्विलिब्रियम। इट एंश्योर्स यूनिक इक्विलिब्रियम। Tangent, you have to use the word tangent. Intersecting, tangent, tangent. तो कंडीशन ही है, जो फर्स्ट कंडीशन है ना, कुछ बुक्स कहते हैं when indifference curve is tangent to the budget line. कुछ बुक्स कहती हैं when the slope or when MRS is equal to the price ratio. कुछ बुक्स कहती हैं when the slope of indifference curve is equal to the slope of budget line. तीनों बातें एग्जैक्टली सेम। ओके, तो चलो बेटा, अब एक बारी ग्राफ बना के दिखाता हूँ। हाँ सर, मजा आएगा इसमें। ध्यान से देखना। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम using indifference curve approach. एक्स एक्सिस पे क्या आएगा ऋषभ? सॉरी सर, मैं आज रजिस्टर है। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा ऋषभ? प्राइस या क्वांटिटी? श्योर? ये क्या कर रही है नालायक? राघव, फोन को उल्टा कर दो बेटा प्लीज, तो जल्दी बताओ एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी नहीं आता, गुड एक्स और गुड वाई आता है। क्या आता है? गुड एक्स और गुड वाई। भगवान सब देख रहे हैं। ध्यान से देख, पहले एक्स एक्सिस बना देंगे,
फिर इंडिफरेंस मैप बनाएंगे। फिर क्या बनाएंगे? इंडिफरेंस मैप। चलो, जय माता। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा टेंजेंट करना है, एक और मैंने जानबूझ के लगा देता हूं। ध्यान से देखना किन किन चीजों का ध्यान देना है। IC1 गलती से भी ऐसा मत बना देना कि वो वापस ऊपर जा रहा हो। IC ऊपर नहीं जाता होता ना, कि बनाते बनाते वो हाथी की सूंड बन गई, तो वायलेशन हो गई, कर्व ऊपर चला गया, तो डिमिनिशिंग एमआरएस तो रही नहीं, इंक्रीजिंग एमआरएस हो गया। डिमिनिशिंग एमआरएस गिरते रहना चाहिए, गिरते रहना चाहिए, गिरते रहना चाहिए। बात समझ आ रही है? और डिमिनिशिंग एमआरएस जो स्लोप है वो धीरे धीरे, जैसे पहले एकदम से गिरा, फिर धीरे धीरे स्लोप कम होती गई, बट बढ़ तो नहीं सकता। इसका मतलब ये वापस ऊपर ना जाए। इंश्योर हम फ्लो में हमें ध्यान नहीं रहता ना, हम बीच पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, तो एंड्स पे भी फोकस करना कि वो नीचे ही रहे, थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाए। ऊपर जहां थोड़ा सा भी ऊपर हो गया, वायलेशन। ठीक है ना? मार्क्स काट सकते हैं वो, 0 भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिलेशनशिप विद द टीचर। कमी अच्छी होती है तो मौका ना दे उनको, ठीक है ना? प्लीज, वायलेशन है तो बिल्कुल काट सकते हैं, मैं भी काटूंगा, मैं भी 0 ही दूंगा आपको। सर मतलब हमारी रिलेशनशिप सही नहीं है क्या? पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट यह कि गलती बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। ध्यान से देखना, तो हमें क्या बनाने हैं? इंडिफरेंस मैप। तो फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, इक्विडिस्टेंट। तो प्लीज आप डी यूज कर लेंगे, फ्री हैंड हो गया तो बहुत ही खुशी की बात है, बट टाइम लगता है, ठीक है ना? बट जितनी दूर दूर बनाएंगे उतना नीट बनेगा। क्या क्या वायोलेशंस नहीं होनी चाहिए? कर्व ऊपर ना जाए बिल्कुल भी। दूसरा, उनका जो डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंट रहने चाहिए एज फार एज पॉसिबल, ठीक है ना? मतलब ऐसा ना हो, ये देखना जैसे कि कुछ लोग लगता है कि इसमें सही तो है, क्या हो गया, क्या गलत है इसमें? जैसे ये है, क्या ये इक्वी डिस्टेंट है थ्रू आउट? नहीं, तो इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए एज फार एज पॉसिबल। ओके, कोई डाउट? तो अपवर्ड स्लोपिंग तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो तो मतलब डिमिनिशिंग हमारे से वायलेट कर दिया, वो तो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। दूसरा, इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा है, नहीं होना चाहिए ऐसा। ओके, कोई डाउट? ठीक है, चलो। तो पहले आप बना देंगे इंडिफरेंस मैप। बना लिए इंडिफरेंस मैप? अब जब बना लिए उसके बाद बनाना बजट लाइन। कैसे बनाना बजट लाइन? ये इंश्योर करना कि 3 पॉइंट्स पे बजट लाइन को कहीं ना कहीं टच कर रही है, ऐसे स्ट्रेट लाइन ज्यादा। सीक्वेंसिंग ध्यान रखना, एक्सेस, इंडिफरेंस मैप, लास्ट में बजट लाइन। तो बजट लाइन यहां से शुरू करना और यहां तक ले जाना। IC1 में 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, और IC2 के टेंजेंट हो, उसके ऊपर से ना जा रही हो। आप अपने हाथ से बना रहे हो ना, तो इसलिए बाद में बनाना कि स्केल रख के आराम से कि टेंजेंट हो। समझ आ रही है बात? हो गया खत्म। तो ये है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक ये पॉइंट है जहां वो इंटरसेक्ट कर रहा है, बट वो टेंजेंट नहीं है ना, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं हुई। मेरे बजट में, हाँ जी बिल्कुल है, बजट में, बजट लाइन पे आ रहा है, अफोर्ड कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर रहा? कह रहे जब IC2 है मेरे पास ऑप्शन, तो मैं IC2 पे, IC1 पे क्यों सेटल हो जाऊं? इसीलिए ये इक्विलिब्रियम है। अफोर्ड मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, बट ये अचीव कर रहा हूँ, तो इसका मतलब जब इंडिफरेंस का टेंजेंट है बजट लाइन को, तब इक्विलिब्रियम अटेन होता है। जब दोनों की स्लोप इक्वल है, तब अटेन होता है। यहाँ पे MRS इज ग्रेटर देन MRE, इसकी स्लोप कितनी हाई? अगर अगर ध्यान से सुनना, MRS डिमिनिशिंग है,
तो इसका मतलब यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व पे ऊपर जो है एमआरएस हाई होगा और यहाँ एमआरएस लो होगा, क्योंकि एमआरएस तो डिमिनिशिंग है ना, बट प्राइस रेशियो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है, क्योंकि प्राइस रेशियो तो कांस्टेंट है। इसका मतलब इनिशियली एमआरएस इज ग्रेटर देन द प्राइस रेशियो, आफ्टर अ पॉइंट एमआरएस इज लेस देन द प्राइस रेशियो। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं हो सकते। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कब हो सकता है? व्हेन एमआरएस इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो। इस पॉइंट पे भी स्लोप सेम होगी। अंदर अगर मैं इंडिफरेंस करके यहाँ आ जाऊं, स्लोप तो यहाँ पे भी सेम है, बट मेरे को जब IC2 का ऑप्शन है तो मैं यहाँ क्यों रुकना चाहूंगा? ये और ये दोनों की स्लोप सेम है कि नहीं है? चाहे जो चीज पैरेलल है एक दूसरे को, दोनों की स्लोप तो सेम ही होगी ना। लेकिन मेरे पास अगर ऑप्शन है IC1 और IC2 का, तो मैं कौन सा चूज करना चाहूंगा? हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द सैटिस्फैक्शन, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। इसीलिए इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ओनली व्हेन द इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। जो प्लॉटिंग करेंगे प्लीज एग्जैक्टली ये ले लेंगे EFG, ठीक है जी। इसको ले रहा है वो E, इसको ले रहा है वो F, इसको ले रहा है वो G, इसको ले रहा है वो H। कह रहा है अच्छा हायर इंडिफरेंस कर्व तो H ले लो, H में क्या दिक्कत है? औकात के बाहर। तो बजट कंस्ट्रेंट एक चीज है, तो बजट लाइन के बाहर है तो वैसे ही वो फीजिबल ऑप्शन नहीं। ओके, कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है, तो ये भी वो चाहते हैं कि हम मार्क कर लें, तो थोड़ी सी थिनर लाइन एज कंपेयर टू इंडिफरेंस कर्व एंड द बजट लाइन, कलर चेंजेस टू ऑरेंज। आपके पास सारे एक ही कलर यूज करना प्लीज, आप कहीं वहां पे कलर पेंसिल का डब्बा मत ले जाना। इसको भी वो चाहते हैं कि आप प्लॉट कर दें, तो जो भी वो MN एक बार की मतलब मेन है, ABCD तो बात की बात है, ग्राफ बनाना आना चाहिए। उसके बाद आप इसको ABCDEFGH कुछ भी लिख दें, बट मैं यहाँ पे इसलिए एग्जैक्टली लिख रहा हूँ ताकि जब वो कहानी पढ़ो तो एटलीस्ट रिलेट कर पाओ कि कौन सा पॉइंट E है, कौन सा पॉइंट H है, बातें सेम हो। इसलिए वरना आप डायग्राम बना रहे हो, मैं इसको ABC लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ B इज द पॉइंट वेयर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। बेटर रहता है इक्विलिब्रियम को E पॉइंट से डिनोट करना चाहिए, बाकी जो आपकी श्रद्धा, बेटर रहता है। बाय कन्वेंशन E यूज किया जाता है। पढ़ें क्या कहते हैं वो? इन द फिगर 2.12 IC1, IC2, IC3 आर थ्री इंडिफरेंस कर्व्स, ठीक है जी। AB इज द बजट लाइन, ABB, चलो वेरी गुड। ये A, ये B इंपॉर्टेंट है बजट लाइन को डिनोट करना। तो अभी समझ आया कि रीड कर रहे हैं तो रिलेट करने के लिए प्लॉटिंग। एग्जाम में भी आपको प्लॉटिंग के साथ ही करना चाहिए, ठीक है। With the constraint of the budget line, the highest indifference curve which a consumer can reach is IC2. कह रहा है IC3 तो बजट के बाहर है, वो ना हो पाएगा। The budget line is tangent to the indifference curve at point E. Keyword है tangent. You have to use the word while explaining equilibrium. This is the point of consumer equilibrium where the consumer purchases OM quantity. तो M का लॉजिक समझे ना? OM quantity of good X and ON quantity of good Y. फटने वाले हो क्या? इतना क्यों हिल रहे हो? बैठा नहीं जा रहा, बस बहुत हो गया। मतलब बाकी तो सब ठीक है ना? चलो, OM quantity of good X and ON quantity of good Y. All other points on the budget line to the left, ये to the left, to the right, to the left नहीं करूंगा मैं कि they are on the lower indifference curve, to the right again on the lower indifference curve, वो कोई भी equilibrium में नहीं आएंगे, will lie on lower indifference curve and thus indicate lower level of satisfaction. As budget line can be tangent to one and only one indifference curve, consumer maximizes his satisfaction at point E. Point of tangency सिर्फ
एक हो सकता है। तो पॉइंट ए, बोथ द कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आर satisfied, are satisfied. Okay, कोई डाउट? तो चलो, at tangency point E, absolute value of the slope of the indifference curve and that of the budget line are same. So slope of indifference of diagrammatic explanation, slope of indifference curve should be equal to the slope of budget line. Equilibrium cannot be established at any other point other than point E. MRS continuously falls. The second condition is also satisfied at point E and MRS is diminishing. IC is convex to the point of origin. कोई भी डाउट? क्लियर? तो ये था indifference curve analysis or consumers equilibrium using IC approach. Very most important question of this chapter.